Good morning, students. This is Pinky Yadav as an English teacher from Suraj School, Mahendragarh. So, students, today we will learn about analytical paragraph. Analytical paragraph. What is analytical paragraph? And how is it written? What is the structure? What is the format of analytical paragraph, or how should we write, or what is the format? So first of all, I would like to tell you that it is the new topic which is recently added by CBSE in 10th standard, 10th syllabus. It has replaced the story writing. Story writing topic होता था, उसके place पर now CBSE has added analytical paragraph. So now let's start the topic analytical paragraph. Analytical paragraph lays out and explains the evidence that support your thesis. So before proceeding the topic, we should know about the definition of the topic. Whatever the topic we are learning, but we should know what is that topic. So analytical paragraph होता क्या है? Why should we need to write this? So analytical paragraph lays out करता है, lays out डिजाइन करता है, आउटलाइन देता है एंड एक्सप्लेन्स और एक्सप्लेन कर देता है द एविडेंस को प्रूफ को. कौन से एविडेंस को? दैट सपोर्ट योर थीसिस. थीसिस मीन्स समरी. पैराग्राफ, समरी विच यू राइट. क्लियर? सो एनालिटिकल पैराग्राफ एक पैराग्राफ होता है इन विच वी हैव टू एनालिसिस द एविडेंस. A paragraph in which we have to analytic the evidence that has been given to us. हमें इसमें डाटा दिए जाएंगे, उन डाटा के बिहाफ पर, उनके बेस पर we have to analysis and then write a paragraph, or we should summarize all the datas. Clear? So analytical paragraph lays out and explains the evidence that supports your thesis. Thesis means होता है summary. Clear? It is based on chart, map, report, bar graph or line graph. It is based on chart, map, report, bar graph or line graph, in which already examiner will give you data, will give you evidence. It may be chart हो सकता है, may be map, report, bar graph or line graph. One of these. It may be there. One of these. आपको वहाँ पर चार्ट मिल सकता है, मैप मिल सकता है, रिपोर्ट मिल सकता है, कोई बार ग्राफ मिल सकता है, या फिर कोई लाइन ग्राफ मिल सकता है. First of all, we should read. We should read that chart, map or report, whatever line graph or bar graph. We should read that carefully. After that, we should understand what that graph or report want to say. After that, we should summarize all the evidence. We should summarize. Clear? So next. Now we should know how to write and what are the elements which are included in analytical paragraph. Analytical paragraph, students, I would like to tell you that from here has it been taken. ये कहाँ से लिया गया है? It has been taken IELTS. IELTS से लिया गया है. In which T is silent. T जो है ये silent है. आइल्स बोला जाता है इसको, आइल्स से लिया गया है. आइल्स मीन्स इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. It has analytical paragraph has been taken from International English Language Testing System. ये यहाँ से लिया गया है. So why should we need to write analytical paragraph? Why has the CBSE included this topic into 10th syllabus? बिकॉज ये क्या होता है कि वहन अवर स्टूडेंट्स या फिर हम लगा लें, हम सब लोग कभी आप लोग भी या हमारी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, ये कभी अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए. तो वहाँ पर जाते ही पहले एक टेस्ट होता है. उस टेस्ट को कौन कंडक्ट करवाता है? ये IELTS, ये आइल्स के द्वारा वहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और सभी को उससे सफ़र करना पड़ता है. जो भी फॉरेन कंट्री में स्टडी करने जाता है उसको इस टेस्ट से सफ़र करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. वो एक डाटा दे देते हैं, उस डाटा पर उनको पैराग्राफ लिखना पड़ता है. तो मे बी CBSE ने ऐसा कुछ थॉट किया होगा कि बच्चों को पहले से प्रिपेयर कर दिया जाए. सो ये यहाँ से लिया गया है आइल्स से. ठीक है, नेक्स्ट analytical paragraph includes these three elements. First number, introduction. Number 2, body. Number 3, conclusion. So all analytical paragraph, or you can say every analytical paragraph must include these three elements. These three elements will be found in analytical paragraph. First, introduction. Second, body. And third, conclusion. So, like all writing skills, like whether it is letter, story, article, debate, speech, whatever, all writing skills में ऑलरेडी मैं आप सबको जनरली बच्चों को बताती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोडक्शन of that topic about which we are going to write, so that readers can know that what the writers want to say. Clear? So introduction में first of all हमें introduce करना होता है topic को, introduction देना होता है, and then body में उसको analysis करना पड़ता है. Other writing skills में उसके cause effect relationship, advantage और disadvantage वो show करना होता है. But here we are talking about analytical paragraph. In analytical paragraph, second part is, first part is introduction, in which we have to show what the report, map, bar graph और line graph says और show. जो हमें बार ग्राफ में दिखाया जाता है, what bar graph और line graph want to say or shows to us, then we have to display the things in which we have read in bar graph. वो हमें इंट्रोडक्शन में शो करनी होती है. इंट्रोडक्शन में जो भी हमने बार ग्राफ में या लाइन ग्राफ जो भी हमें मिला है, उसमें जो डाटा मिला है उस डाटा को हमें रीड करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द थिंग्स अबाउट विच द बार ग्राफ इज, वी हैव टू शो इन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हमें देना होता है. अदर थिंग इज इंट्रोडक्शन मस्ट बी, इट मस्ट बी इन one line statement. One line statement. Introduction one line statement होनी चाहिए. I mean to say कि लाइन आपकी यहाँ पर one statement कह सकते हो, one line statement नहीं, one statement कहो, one statement. One statement. It means आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आपको एक ही लाइन लिखनी है. नहीं, लाइन में भी 2 और 3 हो सकती हैं, बट
स्टेटमेंट एक ही रहेगी, इन विच आप कोमाज यूज कर सकते हो, सेमीकोलन यूज कर सकते हो, बट फुल स्टॉप यहाँ पर एक ही मिलेगा। मीन्स सेंटेंस स्टार्ट होकर फिनिश वन टाइम होगा, एक बार ही होगा। सो वन स्टेटमेंट में आपको इंट्रोडक्शन देना है, मे बी 2 और 3 लाइन, क्लियर, नॉट मोर देन 2 और 3 लाइन्स, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन में आपको यही ध्यान रखना है कि व्हाट द बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और रिपोर्ट या फिर मैप मिला है तो व्हाट दैट मैप शोज, आपको क्या दिखाता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्प्ले इन द इंट्रोडक्शन, क्लियर। आफ्टर दैट वी कम टू बॉडी पार्ट। इन बॉडी पार्ट में हमें पैराग्राफ में बना लेते हैं। सो पैरा फर्स्ट एंड पैरा सेकेंड, पैरा फर्स्ट एंड पैरा सेकेंड, इस तरह से इसमें टोटल 4 पैराग्राफ हो जाते हैं। बट एग्जाम में हमें जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, फिर पैरा फर्स्ट लिखें, पैरा सेकंड लिखें, पैरा थर्ड फोर्थ लिखें, इस तरह से लिखें, नहीं, हम कंटिन्यू अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर एक लाइन का गैप देकर हम बॉडी पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर, एंड देन कंक्लूजन होता है। बॉडी पार्ट में वी हैव टू एनालिसिस, और वी हैव टू समराइज ऑल द डेटा जो हमें बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में जो भी हमें डाटा मिले हैं, वो डाटा हमें बॉडी पार्ट में एनालिसिस करने होते हैं। जो भी डाटा हमें मिलेगा, भी डाटा क्या मिलेगा, कोई भी डाटा हो उसमें भी किस तरह से उनमें वो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, किस तरह का वो डाटा है, वो डाटा हमें यहाँ शो करना होता है बॉडी पार्ट में, क्लियर। यहाँ एनालिसिस करना है बॉडी पार्ट में कि जो डाटा मिला है वो डाटा कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब सडनली वो रेज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, एंड देन डिक्लाइन हुआ है, एंड देन फिर वो स्टेडी फास्ट चल रहा है, स्टेडीली चल रहा है, फिर डिक्लाइन हो गया है। इस तरह से व्हाट इज एक्सपेक्टेड, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कौन सी ईयर तक क्या कैसे चलेगा, क्लियर। एंड देन कंक्लूजन में वी हैव टू कंक्लूड द टॉपिक, कंक्लूजन में वी हैव टू कंक्लूड द टॉपिक, लाइक इन कंक्लूजन एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट, कि जो भी डाटा है वो डाटा इतने से इतने तक ऐसा चला, उसके बाद डिक्लाइन हुआ, एंड देन फिर वो रेज्ड हुआ, और फाइनली ऐसा एक्सपेक्टेशन होती है कि ये एट द एंड ऑफ दैट ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सेंचुरी, ये ऐसे ही रहेगा। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू गिव इन द कंक्लूजन मीन्स कंक्लूड देना होता है हमें टॉपिक का, जो भी ओवरव्यू हमने देखा है, पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, उसको हमने कंक्लूजन में देना होता है, क्लियर। सो लाइक दिस वी हैव टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ। व्हाट इज द एनालिटिकल पैराग्राफ वी हैव डिस्कस्ड, एंड हाउ टू राइट, व्हाट इज द फॉर्मेट, I have given you introduction, body part and conclusion. We have to discuss all these things through these 3 elements, clear। इसमें मिलेगा क्या, आपको क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन की साइड में आपको इस तरह का कोई ग्राफ मिल जाएगा, बार ग्राफ मिले, लाइन ग्राफ मिले, इस तरह से कोई बार ग्राफ हो या लाइन ग्राफ हो, ठीक है। इस साइड आपको नंबर मिल जाएंगे, इस साइड आपको ईयर मिल जाएंगे। सपोज कर लो डेथ और बर्थ रेट का ही आपका डाटा मिला है कि इंडिया में लगा लो, इंडिया में 2019 से 1990 में, फिर यहाँ पर जाकर 90 में था, फिर 1991 हो गया, 1992 हो गया, 1993 एंड देन 2000 लगा, क्लियर। इस तरह से यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25 लाइक दिस। यहाँ पर y एक्सिस पर आपको कुछ डाटा मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पर x एक्सिस पर डाटा मिलेंगे। इस तरह से आपको कोई ग्राफ मिल जाएगा, उसमें इस तरह से लाइंस बनी हुई होंगी, इस तरह से आपको कोई लाइंस मिल सकती हैं उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस डाटा को रीड करना है कि ये क्या कहना चाहता है। आफ्टर दैट वी शुड एनालिसिस द डाटा। यहाँ पर देखो ना, ये इस तरह से सिंबल में मिलेगा, जो ये लाइंस है या तो डिफरेंट कलर में मिलेंगी, या फिर किसी न किसी तरह से यहाँ पर पहचान दी जाएगी भी। डेथ के यहाँ पर आपको रेड कलर मिल जाए, एंड बर्थ का आपको यहाँ पर ब्लैक कलर मिल जाए,
ये दोनों लाइन मिलेंगी, एक रेड मिल गई, एक ब्लैक मिल गई, सपोज करो ऐसे मिल जाएंगी। फिर आपको इसको रीड करना है कि 1990 में, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है 1990 में, ठीक है। ये हमारी बर्थ की है, ये हमारी डेथ की, ये डेथ है, ये बर्थ है, ठीक है। तो बर्थ रेट हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? 1990 में। कितनी थी? 15,000, ठीक है। डेथ रेट कितनी थी? 5,000। यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि नंबर ऑफ द डेथ इन थाउजेंड्स, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये 1000 में जो डेथ के मेंबर है, डेथ की जो डेटा है, रेट है, वो यहाँ पर मेंशन मिलेगी। तो 1990 में बर्थ के कितने हैं? बर्थ यहाँ पर ये डेथ की होगी, ये बर्थ की होगी, तो बर्थ कितने हुए? 15,000। डेथ कितने हुए? 5। इट मीन्स जो बर्थ रेट थी वो हाई थी, अप थी, और ये जो डेथ रेट थी ये लो था, ये इससे कम था। तो हमें डेटा इसी तरह से स्टार्ट करना होगा कि एज वी हैव सीन इन द पैराग्राफ, इन द बार ग्राफ, दैट बर्थ रेट इज हाई इन कंपैरिजन डेथ रेट। इस तरह से हमें स्टार्ट करना होगा। उसके बाद क्या होता है, जो बर्थ रेट है वो देखो रेज करता हुआ जाता है, रेज करता हुआ जाता है, फाइनली ये डाटा आपको ऊपर तक मिल सकता है। आप हम यहाँ पर 25,000 तक लगाएंगे कि ये अप हो जाता है, एक बार पीक पे चला जाता है। पीक पर कितना? 25,000 पर आ गया है। उसके बाद ये डिक्लाइन भी हो रहा है, डिक्लाइन होते होते यहाँ पर 2,000 तक यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर शो कितना होता है? 15,000, कि 15,000 से स्टार्ट हुआ है, फाइनली जाकर 2,000 तक 15,000 ही हो गया, बीच में एक बार पीक पर गया है। इसी तरह से डेथ का दिखाएंगे यहाँ पर कि डेथ 5,000 से स्टार्ट होकर फिर ये एकदम रेज होता है, फिर डिक्लाइन आ जाता है, बीच में डिक्लाइन दिखा दो। डिक्लाइन भी आता है, कौन सी ईयर में आता है? 1992 में डिक्लाइन पर आता है। डिक्लाइन भी कितना हो जाता है कि 10 पर आ जाता है। उसके बाद फिर ये अप जाता है, अप जा रहा है, 20 तक जाता है, और फाइनली 2000 तक ये बर्थ रेट से रेज हो जाता है। इन द कंपैरिजन ऑफ बर्थ डेथ रेट हाई हो जाता है। इस तरह से आपको डाटा मिलेगा, वो डाटा हमें शो करना है थ्रू दीज एलिमेंट्स, इन 3 एलिमेंट्स के माध्यम से। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ analytical paragraph, how should we write? Clear? So that's all student, thank you.